बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है और ये इंग्लिश का पेपर है, मॉडल पेपर। इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है 40 मार्क्स का है, क्योंकि ये पेपर जो है 100 नंबर का होता है। तो सेक्शन बी 40 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए 10 मार्क्स के। जो 7 क्वेश्चन है, आपने 5 करने होंगे। और उसके अलावा इसी तरह ग्रामर वर्क है। तो ग्रामर वर्क भाई बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको साथ में ग्रामर भी कोशिश करूँगा समझाने की, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स गेन करने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर अगर आपने अच्छी की होगी तो इंशाल्लाह चेकर जो है जो भी आपका पेपर चेक करेगा वो आपको मार्क्स अच्छे देगा आपकी ग्रामर को देखते हुए। और ग्रामर जो है वो ज़ाहिर है थोड़ी सी प्रैक्टिस से आती है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन आंसर देख लें। व्हाई वाज द पोएट आस्क्ड to go down again in the poem The Voice of God? God told the poet to go down again because he does not live only in the sky, he is very everywhere. We may find him by serving the suffering humanity and by removing their difficulties. Question number 2 है, why is China having a rapid progress? In China, the people have learned the dignity of work and the secret of success. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. Even the Prime Minister and his wife do this work. The belief that everyone ought to work, hence no wonder they are making such quick progress. Question number 3 है, what lesson did the king learn from the spider? King Bruce learned from the spider that we should not be disappointed on our failure in struggle. We should try again but not give up hope against odds. Question number 4 है, what is the message of the poem Little Things? We should not look down upon little things. Everything has its importance, how little it may be. As we see, every big and great thing is made up of little things. An ocean is made up of little drops of water. Little grains of sand make a bigger desert. In the same way, little errors become big sins. Little deeds of kindness and love console the hearts and bring happiness in this world. Question number 5 है, what happened to Mr. Abdul Karim when he went for a walk? When Mr. Abdul Karim went for a walk, he was deep in thought when he felt someone walking behind him. He looked back but did not see anyone. It was getting dark. Mr. Karim had a strange feeling. He quickly moved to other side and started walking back toward the house. But there a strange thing happened, jumped and blocked his way. He quickly changed his route again and went to the other side. Question number 6 है, how did the caliph decide the case? The caliph, being wise, settled the dispute in a minute. He ordered both the men to touch the horse. When the beggar touched the horse, it showed the displayer by wincing. But when the rich man touched the horse, it neighed and snorted with pleasure. The reaction of the animal proved the true ownership of the rich man. In this manner, the case was decided, and the caliph was able to prove that the beggar was a liar and wicked man. Question number 7, how can social media be handy for the student nowadays? Social media has opened new vistas for students and professionals who can easily interact with counterparts in any part of the world and exchange views on matters of mutual interest. Students can also easily interact with educators and researchers in any part of the world and gain from their knowledge and wisdom. अच्छा भाई, ये आपके 7 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैंने दे दिए हैं। आंसर हर स्कूल के अपने अपने होंगे। जो भी आपको आंसर अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप यही आंसर करें। जो आपके पास मौजूद हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, यहाँ से ग्रामर शुरू है। डू एज डायरेक्टेड, एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यूज प्रीपोजिशन। फर्स्ट है, ही सक्सीडेड इन गेटिंग व्हाट ही वांटेड, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है प्रीपोजिशन। सेकंड है, द शॉप डज नॉट हैव द टॉय आई वाज लुकिंग फॉर, वो खिलौना उसके पास नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। यूज़ आर्टिकल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखें, सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट जो है आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री, और हर सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले जो है वो दी आता है। सेकंड है, आई वांट एन एप्पल। एप्पल, अलिफ की आवाज़ जहाँ आ रही हो और वॉवेल भी हो, और अलिफ की आवाज़ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर एन आता है, ये याद रखिएगा। थर्ड है, चेंज द वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव है। वेयर डिड दे स्पेंड ऑल द मनी, वेयर वॉज ऑल द मनी स्पेंड बाय देम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें एक्टिव पैसिव में समझ लें।
नेक्स्ट सेंटेंस में चेंज हो जाता है, ये सिंपल पास्ट था तो ये पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है, वॉज। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक्टिव से पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। द कारपेंटर मेक्स अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल। अ ब्यूटीफुल ड्रेसिंग टेबल इज़ मेड बाय द कारपेंटर। ही विल कन्वे माई इम्पोर्टेंट मैसेज टू हिम। माई इम्पोर्टेंट मैसेज विल बी कन्वेड टू हिम बाय हिम, या फिर ये भी सही, दूसरा जुमला भी मैंने बना दिया, टू हिम माई इम्पोर्टेंट मैसेज विल बी कन्वेड बाय हिम। चेंज द नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ही सेज टू देम यू आर डूइंग योर वर्क, तो ही टेल्स देम दैट दे आर डूइंग देयर वर्क। अब चूँकि ये शुरू में जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सिंपल टेंस में है, तो इसलिए जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी ग्रामर चेंज नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा, वो टेंस चेंज नहीं होगा। She said fish cannot live without water. She said that fish cannot live without water. अब देखें यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें ग्रामर चेंज यानी टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? चूँकि ये एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। नेक्स्ट है, दे एक्सक्लेम्ड दैट दोज मैंगोज़ वर वेरी स्वीट। दे सेड हाउ स्वीट दीज मैंगोज़ आर। ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज हुआ। शी सेड टू हिम डिड यू सी द स्नेक इन द कंपाउंड्स ऑफ दिस हाउस। शी आस्क हिम। अब आस्क क्यों आया? चूँकि ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है तो सेड आस्क में चेंज हो जाएगा। वेदर ही सॉ द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ दैट हाउस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज सजेस्टेड इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो कहा गया है उसमें इसको चेंज करना है। फर्स्ट है, डिड ही गो देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस। अब ये आपको पता है सिंपल प्रेजेंट जो है उसका टेंस था इंटेरोगेटिव में चेंज इनटू असर्टिव। ही वेंट देयर इन हिज मदर्स एब्सेंस, तो ये बिल्कुल सादा जुमला पास्ट इंडेफिनेट का। सेकेंड है, गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मून लिट नाइट। चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज किया। गर्ल्स विल बी प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द मून लिट नाइट। सी है, हैज़ इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून। चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। हैड इट बीन ड्रिजलिंग सिंस नून। नेक्स्ट है, थ्रस्टी क्राउ डज नॉट फ्लाई हेयर एंड देयर। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, नेगेटिव का इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है। डज थ्रस्टी क्राउ फ्लाई हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है, आई हैव सो मैनी ऑरेंजेस। ये आपने सिर्फ सिंपल है, आपने इसको नेगेटिव में करना है। आई डू नॉट हैव सो मैनी ऑरेंजेस। नेक्स्ट है, नाउ इट इज़ माई टर्न सेड ही टू देम। पंक्चुएट करना है आपने, तो नाउ उसके बाद कॉमा, इट इज़ माई टर्न, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज में सेड का कैपिटल एस आएगा। ही टू सेड ही टू देम फुल स्टॉप। उसके बाद है, गिव प्रीफिक्स टू रेलिवेंट इररेलिवेंट। गिव सुफिक्स टू वंडर वंडरफुल। राइट होमोफोन ऑफ एक्सेप्ट यानी एक जैसी आवाज़ लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग चेंज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फॉर इंस्टेंस एडवर्ब। अब ये सारे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन जुमलों में ये एडवर्ब हैं, लेकिन आपने एडवर्ब की टाइप बतानी है। फर्स्ट है, आई हैव लर्न दिस पोइम बिफोर। एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम इसमें शो हो रहा है। सेकंड है, शी टोल्ड मी द सेम स्टोरी ट्वाइस। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। थर्ड है, ही टॉक्ड वेरी मेलोडी। मैनर एडवर्ब यानी मेलोडी किस तरह बात की, मेलोडी यानी मैनर उसमें बताया जा रहा है। 4, ही वॉज ऑर्डर्ड टू स्टैंड स्टिल हेयर, तो ये जगह की बात हो रही है, तो प्लेस एडवर्ब। 5 है, देयर आर पार्टली रॉन्ग इन दिस मैटर, तो पार्टली जो है यहाँ पर उसको शो कर रहा है डिग्री एडवर्ब को। तो ये सब मैंने जो एडवर्ब हैं उनको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। द एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म lives is made up of various components like air, water, land, etc. These components are found in fixed proportions to create a harmonious balance in the environment for the organism to live in. Any kind of undesirable and unwanted change in the proportion of these components can be termed as pollution.
This issue is increasing with every passing year. It is an issue that creates economic, physical and social troubles. तो इसको उर्दू में हमने ट्रांसलेट किया है। एक जानदार के इर्द गिर्द माहौल होता है, वो माहौल जिसमें एक जानदार रहता है। ये मुख्तलिफ़ अज्जा जैसे हवा, पानी, ज़मीन वगैरह से बना है। ये अज्जा माहौल में हम आहंग तवाज़ुन पैदा करने के लिए ख़ास तनासुब में पाए जाते हैं ताकि वहाँ जानदार रह सकें। इन अज्जा के तनासुब में नापसंदीदा और नापसंदीदा तब्दीली को आलूदगी कहा जा सकता है। ये मसला हर गुज़रते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा मसला है जो माशी, जिस्मानी और समाजी मुश्किलात पैदा करता है। तो ये भाई आपका सेक्शन बी सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह सेक्शन सी भी सॉल्व कर दूंगा। जल्दी में मैंने सॉल्व किया, कोशिश पूरी है कि बिल्कुल सही हो। फिर भी आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई चीज़ मिसिंग हो, कुछ मिस्टेक हो, कोई गलती हो या कुछ आपको समझ में ना आए, डाउटफुल हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।